Welcome to Power Electronics class. In this session, we will discuss static VI characteristic of SCR. आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक VI characteristic of SCR को स्टडी करेंगे. जैसे कि लास्ट सेशंस में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ SCR को डिस्कस किया है, जो कि एसेंशियल है स्टैटिक VI characteristic of SCR को स्टडी करने के लिए. So today we will discuss static VI characteristic of SCR. Static VI characteristic of SCR. This V here stands for anode to cathode voltage and this I stands for anode to cathode current. This is forward voltage. This is reverse voltage. This is forward current. This is reverse current. This is basically forward voltage. This is basically reverse voltage. This is forward current. This is reverse करेंट. तो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की. तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने SCR को फॉरवर्ड बायस्ड किया था, लेकिन गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना था? 0 था, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज से कम थी. सो J1 and J3 junction will be in forward bias condition, but J2 junction was in reverse bias condition. That's why a very small forward leakage current will flow from anode to cathode. In forward blocking mode, a very small leakage current will flow from anode to cathode, and the voltage across anode to cathode was large. So in forward blocking mode, a very small current that is forward leakage current will flow in SCR. That current will be in range of microampere to milliampere, but voltage was large. This is forward blocking mode. This is forward blocking mode.
a very small forward leakage current will flow from anode to cathode. And voltage across anode and cathode is large and equal to supply voltage. Here in this forward blocking mode, anode to cathode voltage is large and anode to cathode current is slightly or greater than equal to 0 ampere. That is very small current. And SCR will behave as open circuit. SCR कैसे behave करेगा? Open circuit की तरह forward blocking mode में, due to depletion layer around J2 junction. If we increase the anode to cathode voltage, अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम लोग फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर दें, अगर हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर दें तो वोल्टेज ग्रेडियंट इतना हाई हो जाएगा कि J2 जंक्शन में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा कर दें तो वोल्टेज ग्रेडियंट इतना हाई हो जाएगा कि J2 जंक्शन के अराउंड जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई है उसमें एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। So all junctions will be in forward biased and large current will flow from anode to cathode, and SCR will latch into conduction mode, that is SCR will get turned on and SCR will behave as short circuit. Approximately it will behave as short circuit. There will be very small on state voltage drop in SCR. It will be in range of 1 to 2 volt when SCR get turned on. So अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा कर देते हैं जिसके वजह से वोल्टेज ग्रेडियंट इतना हाई हो जाएगा कि J2 जंक्शन के अराउंड जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई है उसमें एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके वजह से a large current will flow from anode to cathode or SCR will get turned on and it will behave as short circuit, approximately behave as short circuit. There will be a very small voltage drop in SCR during conduction mode. It will be in range of 1 to 2 volt. तो अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा कर देते हैं, सो SCR विल लैच्ड इनटू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड लार्ज करंट विल फ्लो इन SCR. So this will be forward conduction mode. As we know that in this mode a very large current will flow through SCR because all junctions will be in forward biased condition and anode to cathode voltage will be very small. It will be in range of 1 volt to 2 volt. And SCR will latch into conduction mode, that is it will get turned on.
So this is on state voltage drop. On state voltage drop across SCR of range 1 volt to 2 volt. This is forward leakage current. Which will flow from anode to cathode when SCR is in forward blocking mode. In range of microampere to milliampere. Generally it will be in range of milliampere. So SCR will operate in first quadrant, and here SCR will get turned on. SCR यहाँ पर क्या हो गया है, ऑन हो चुका है. SCR will on. Another mode of SCR is reverse blocking mode. तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, कैथोड को सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एनोड को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. दैट इज कैथोड का वोल्टेज एनोड के वोल्टेज से ज्यादा होता है, इसीलिए एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव. और करंट कैसे फ्लो करती है, कैथोड टू एनोड. दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव. So if we reverse bias the SCR, as we have seen, J1 junction and J3 junction will be in reverse bias condition and J2 junction will be in forward bias condition. So in reverse bias condition of SCR, there will be two depletion layer. जब हम SCR को रिवर्स बायस करते हैं तो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है. J1 जंक्शन और J3 जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है और J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है. तो SCR में दो डिप्लीशन लेयर होगी, एक अराउंड J1 जंक्शन और एक अराउंड J3 जंक्शन. So a very small leakage, reverse leakage current will flow from cathode to anode. A very small leakage current will flow from cathode to anode. So in reverse blocking mode, anode to cathode voltage will be negative and anode to cathode current will be negative. So SCR will operate in third quadrant. ये करंट नेगेटिव क्यों है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रही है, एज कंपेयर टू दिस करंट. ये करंट एनोड से कैथोड फ्लो कर रही है और ये करंट कैथोड से एनोड. तो इन रिवर्स बायस कंडीशन करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. एंड वी हैव अप्लाइड रिवर्स्ड वोल्टेज, दैट्स व्हाई it will be negative. So SCR will operate in third quadrant. So when we will reverse bias the SCR, a very small leakage current will flow from SCR from cathode to anode. As we will increase the anode to cathode voltage in reverse direction,
अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाएंगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे, दैट इज रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज पे, there will be avalanche breakdown, there will be avalanche breakdown in depletion layer. अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को रिवर्स कंडीशन में बढ़ाते जाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे, दैट इज रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, वोल्टेज ग्रेडियंट इतना हाई हो जाएगा कि दोनों डिप्लीशन लेयर में, जो एक बनी हुई J1 जंक्शन के अराउंड और एक बनी हुई J3 जंक्शन के अराउंड, दोनों डिप्लीशन लेयर में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा और लार्ज रिवर्स लीकेज करंट विल फ्लो इन SCR. जब हम रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज से क्या कर दें, ज्यादा कर दें, so large reverse current will flow in reverse direction, that is from cathode to anode. So this is reverse blocking mode of SCR, and this is small reverse leakage current in order of microampere. So this is first quadrant and this is third quadrant. फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR क्या होता है, ऑन होता है, SCR विल ऑन. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR ऑफ होता है and here SCR will off. So this is VI characteristic of SCR, representing three mode of SCR. अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा कर दें, so large voltage and large current will flow from SCR and there will be a large power dissipation. Due to that there will be a large temperature rise and SCR में damage. अगर हम रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं तो SCR से large reverse current flow करेगी and there will be a very high power dissipation, जिसके वजह से SCR का टेम्परेचर राइज बहुत ज्यादा हो जाएगा और SCR क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. जनरली रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, generally reverse break over voltage will be slightly greater than forward break over voltage. Very important point. रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू जनरली स्लाइटली ग्रेटर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है. गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 0. We have turned the SCR by increasing anode to cathode voltage greater than forward break over voltage. This point is latching current. This point represents latching
current. I will discuss, this is very important. And this current is holding current. This is latching current and this point is holding current. I will discuss after some time latching current and holding current. If I apply gate drive circuit between gate terminal and cathode terminal, that is जब हम गेट करंट, पॉजिटिव गेट करंट फ्लो करवाते हैं गेट टर्मिनल और कैथोड के बीच में, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे जैसे हम गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज घटता जाएगा। जैसे जैसे हम गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए, वैसे वैसे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज जिस पर एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो जैसे हम गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, अगर हम गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, सो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, मोर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर will reach in depletion layer and depletion layer will break down at lower voltage. जैसे से हम गेट करंट बढ़ाते जाएंगे, फ्री चार्ज कैरियर आउटर एन लेयर से, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर एन लेयर विल फास्टली मूव इन डिप्लीशन लेयर। जैसे हम फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे गेट करंट के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से पहुंचेगा किसमें, डिप्लीशन लेयर में, और स्मॉल फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर आपका एससीआर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। सो अगर हम गेट करंट बढ़ाएं, हियर गेट करंट वाज 0, अगर हम यहां की बात करें IG1, so SCR will turn on before फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम गेट करंट को और बढ़ा दें, this gate current is IG2, तो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज और कम हो जाएगा और SCR जल्दी से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एंटर कर जाएगा। अगर हम गेट करंट और बढ़ा दें, तो जैसे जैसे हम गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज कम होता जाएगा, दैट इज एससीआर हमारा जल्दी से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एंटर कर जाएगा। सो FbO2 less than F, this is 1, this is 2, this is 3. FbO3 less than VFbO2 and VFbO1 is less than VFbO.
सो जैसे जैसे गेट करंट मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जाएंगे फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और SCR हमारा जल्दी से फॉरवर्ड वॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एंटर कर जाएगा। सो दिस इज स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट की। Variation of forward breakover voltage with gate current। तो जैसा कि अभी हमने देखा फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, गेट करंट पर। This is forward breakover voltage which depends upon gate current, because gate current, due to gate current, gate terminal will be positive, gate terminal क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये आउटर एन लेयर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और गेट करंट का मैग्नीट्यूड अगर आप बढ़ाएंगे तो गेट क्या होगा, मोर पॉजिटिव, it will attract electron from outer layer firstly. So electron from outer layer move towards depletion layer firstly. So depletion layer में जल्दी से फ्री चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा और डिप्लीशन लेयर में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। So this is variation of forward breakover voltage with gate current. This is point O, this is point A. Point B, this is point C, this is point D. This is point X. This is point Y. This is point Z. This axis corresponds to gate current. Here gate current will be slightly greater than or equal to 0 एम्पियर। यहाँ पर गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 तो नहीं है, 0 के अप्रॉक्स है, इसलिए यहाँ पर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम, दैट इज इट विल बी corresponds to VBF VFBO naught, this one corresponding to gate current 0, forward breakover voltage was VFBO naught। गेट करंट का मैग्नीट्यूड लगभग क्या है, 0 एम्पियर है। सो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज विल बी मैक्सिमम बिकॉज गेट करंट इज 0। As we will increase the gate current, that is IG naught, ठीक है, OB will corresponds to
IG1. Corresponding to IG1 forward breakover voltage, this is X representing VFBO1. अगर हम गेट करंट बढ़ा दिया हमने IG0 से IG1 तो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। कहाँ से, VFBO0 से VFBO1। हमने गेट करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ा दिया। OC corresponds to IG2. तो corresponding to OC, that is IG2 current, IG2 gate current, what is forward breakover voltage? VFBO2. हमने गेट करंट को अगर और बढ़ा दिया, that is OD representing gate current IG3. This is IG3. So corresponding to gate current IG3, what is forward breakover voltage? VFBO3. अगर गेट करंट कितना है, OD representing gate current of magnitude IG3. Corresponding to gate current IG3, forward breakover voltage is VFBO3. So Z represent VFBO3. So as we increase gate current, forward breakover voltage will decrease. फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज मैक्सिमम होगा करस्पॉन्डिंग टू IG0 और फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज मिनिमम होगा करस्पॉन्डिंग टू गेट करंट IG3. So IG3 will be greater than IG2, greater than IG1, greater than IG0, and VFBO0 will be less than VFBO1, less than VFBO2, less than VFBO3. तो जैसे जैसे हम गेट करंट बढ़ाते जाएंगे फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज घटता जाएगा। गेट करंट बढ़ाने से SCR हमारा जल्दी ऑन हो जाता है। So this is relation or variation of forward breakover voltage with gate current. Higher the magnitude of gate current, lower will be forward breakover voltage. So generally forward breakover voltage is not fixed value. It will depends upon the magnitude of gate current. Generally forward breakover voltage is not constant value. It will depends upon the magnitude of gate current. तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम पॉजिटिव गेट करंट या फिर पॉजिटिव गेट सप्लाई कनेक्ट करते हैं गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल के बीच में, जो कि हमारे SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाता है, दैट इज SCR को टर्न ऑन कर देता है। टर्न ऑन होने के बाद हम गेट ड्राइव सर्किट को ओपन सर्किट कर देते हैं ताकि कंटिन्यूअस पावर लॉस ना हो। Once SCR get turned on, gate lose control over device.
once SCR get turned on with the help of gate drive circuit, gate will lose control over device। जैसे ही SCR टर्न ऑन हो जाता है, किसकी हेल्प से? गेट ड्राइव सर्किट से, दैट इज पॉजिटिव गेट करंट। गेट का कंट्रोल नहीं रहता है किस पर? डिवाइस पे। दैट्स व्हाई SCR इज सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। पॉजिटिव गेट करंट की हेल्प से हम लोग SCR को टर्न ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही SCR टर्न ऑन होता है, गेट अपना कंट्रोल डिवाइस पर नहीं रख पाता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ I will discuss latching current and holding current. Latching current. This term is associated or related with turn on process and it is denoted by IL। लैचिंग करंट का संबंध टर्न ऑन प्रोसेस से है। इट इज एसोसिएटेड or related with turn on process। very important। लैचिंग करंट का संबंध किससे है? टर्न ऑन प्रोसेस से है। और होल्डिंग करंट का संबंध टर्न ऑफ प्रोसेस से है। होल्डिंग करंट को हम लोग IS से डिनोट करते हैं। होल्डिंग करंट का संबंध टर्न ऑफ प्रोसेस से है। इट इज एसोसिएटेड विथ और रिलेटेड विथ टर्न ऑफ प्रोसेस। लैचिंग करंट का संबंध टर्न ऑन से है और होल्डिंग करंट का संबंध टर्न ऑफ से है। वेरी इंपॉर्टेंट। So now I will define latching current। It is the minimum value of anode to cathode current which must flow through SCR during turn on process। It is a minimum value of anode to cathode current which must flow through SCR during turn on process so that
SCR remain in conduction mode even after the removal of gate current. लैचिंग करंट एनोड टू कैथोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू होती है जो कि SCR से फ्लो होनी चाहिए किस टाइम पे, ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस, ताकि SCR किस मोड में बना रहे, कंडक्शन मोड में. कंडक्शन मोड मींस SCR विल रिमेन इन ऑन पोजीशन. कब? जब गेट करंट को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है. सो लैचिंग करंट क्या होती है, एनोड टू कैथोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू होती है कि जो कि SCR से फ्लो होनी चाहिए किस टाइम पे, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम. जब SCR क्या होता है, टर्न ऑन होने की कोशिश करता है ताकि वो कंडक्शन मोड में बना रहे. कब? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ गेट करंट. जब हम गेट करंट को जीरो कर दें, गेट ड्राइव सर्किट को क्या कर दें, ओपन सर्किट कर दें, तब भी SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में बना रहे. कब? जब गेट करंट को हम क्या कर दें, जीरो कर दें. सो अगर एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से क्या हो, ज्यादा हो, अगर एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से क्या हो, ज्यादा, IL मींस लैचिंग करंट. लैचिंग करंट को हम किससे नोट करते हैं, IL से. अगर हमारे एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा हो गई है और हमने गेट करंट को क्या कर दिया है, जीरो, गेट ड्राइव सर्किट क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया, हटा दिया है, तो SCR तब भी किस मोड में बना रहना चाहिए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में. दैट इज SCR must be on even after the removal of gate pulse. अगर एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा है और हमने गेट करंट को क्या कर दिया, जीरो, SCR शुड और मस्ट भी क्या, तो लैचिंग करंट किससे संबंधित है, टर्न ऑन प्रोसेस से. नाउ आई विल डिफाइन होल्डिंग करंट. इट इज द minimum value of anode to cathode current it is the minimum value of anode to cathode current below which it is the minimum value of anode to cathode current below which SCR get turned off. ये एनोड टू कैथोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसके नीचे SCR टर्न ऑफ हो जाता है. So holding current is minimum value of anode to cathode current below which SCR get turned off. So अगर एनोड टू कैथोड करंट को हमने होल्डिंग करंट से कम कर दिया, SCR क्या हो जाना चाहिए, टर्न ऑफ.
होल्डिंग करंट क्या है, एनोड टू कैथोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू है जिसके नीचे SCR क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। बिलो मींस नीचे। सो लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्न ऑन प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस। SCR को ऑन करने के लिए जो गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो रेंज में होता है 20 मिली एम्पियर टू 200 मिली एम्पियर। SCR को टर्न ऑन करने के लिए जो गेट करंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो किस रेंज में होता है, 20 मिली एम्पियर टू 200 मिली एम्पियर टू टर्न ऑन द SCR। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लैचिंग करंट किससे संबंधित है, टर्न ऑन प्रोसेस से, और होल्डिंग करंट किससे संबंधित है, टर्न ऑफ प्रोसेस से। अगर एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा होगी, SCR क्या होगा, ऑन। और अगर एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम होगी तो SCR क्या होगा, ऑफ होगा। Latching current is greater than holding current. This is holding current. IH means holding current and IL means latching current. IL means latching current. लैचिंग करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट का मैग्नीट्यूड होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? जनरली लैचिंग करंट is 2 to 3 times of holding current. लैचिंग करंट का मैग्नीट्यूड जनरली 2 से 3 गुना होता है। किसकी तुलना में? होल्डिंग करंट की तुलना में। लैचिंग करंट का मैग्नीट्यूड होल्डिंग करंट के मैग्नीट्यूड के 2 से 3 गुना होता है। जनरली होल्डिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 10 मिली एम्पियर के अराउंड। जनरली होल्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड 10 मिली एम्पियर के अराउंड होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। सो लैचिंग करंट विल बी 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट किस रेंज में होगा? 20 to 30 मिली एम्पियर। इसके लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर हम SCR को यूज करते हैं तो होल्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड 10 मिली एम्पियर और लैचिंग करंट का मैग्नीट्यूड 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर की रेंज में होगा। सो लैचिंग करंट is associated with turn on process and holding current is associated with turn off process. Generally SCR को टर्न ऑन करने के लिए 20 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर को हम यूज करते हैं। इसी रेंज में गेट करंट को हम यूज करते हैं SCR को ऑन करने के लिए। लैचिंग करंट का मैग्नीट्यूड होल्डिंग करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए होल्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड 10 मिली एम्पियर के रेंज में होता है
और जैसा कि लैचिंग करंट का मैग्नीट्यूड 2 से 3 गुना होता है एज कम्पेयर टू होल्डिंग करंट, सो लैचिंग करंट विल बी इन रेंज ऑफ 20 milliampere to 30 milliampere for industrial application. So if we talk about the ratio of latching current and holding current, so if we talk about ratio of latching current to holding current, it will be always greater than 1 because latching current is greater than holding current. लैचिंग करंट का रिलेशन किसके साथ होता है? एससीआर के टर्न ऑन प्रोसेस से, और होल्डिंग करंट का रिलेशन होता है एससीआर के टर्न ऑफ प्रोसेस से। एससीआर का जो करंट रेटिंग होता है वो 3 किलो एम्पियर के अराउंड होता है। वोल्टेज रेटिंग 10 किलो वोल्ट और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी will be around 30 megawatt. And SCR is semi-controlled switch because as SCR get turned on, gate lose control over SCR. By applying positive gate current, we can turn on the SCR, but by applying negative gate current, we cannot turn off the SCR. In next session, I will discuss questions regarding latching currents, that is numerical based on latching current. That will clear more concept regarding latching current. Next session में हम लोग लैचिंग करंट से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारे कंसेप्ट को और बिल्डअप करेगा।